Okay, good morning, friends. So let's start our today's session. So today we are going to discuss again another most important point, the most important phase in the preparation of UPSC, that is your current affair. Now lots of students are asking regarding current affairs, sir. Exactly, I don't know what to prepare for current affair, how to prepare, why to prepare, from means from where I have to start preparing, because almost all I have 3 to 4 years in to appear in the exam, suppose. So today we are going to discuss on some basic things, that what is mean by current affairs, suppose, why it is necessary to study current affairs. Then we will study about that, from what should be the sources to study current affairs. So sir, मैं अगर मेरा attempt, if my attempt is in the 2026 or 27, suppose after 3 year or 4 years, so from where I should start reading, or from when I should start studying for the current affairs. These will be my basic points of discussion, and simultaneously what is the expectation of UPSC, because lots of students, even after preparing for current affairs, they are not at all satisfied with their own performance कि सर मैं तो बहुत प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो अलग ही पूछे जाते हैं यूपीएससी में। देखिए, अलग वगैरह कुछ नहीं रहेगा, जो यूपीएससी के एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है अपने खुद के बारे में, और फ्रॉम द कैंडिडेट्स दैट दे आर गोइंग टू आस्क टू यू पीपल, सो नथिंग विल बी डिफरेंट। सपोज इसमें फर्स्ट चीज रहेंगे कि सर मुझे करंट अफेयर, जो करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, तो व्हाट इज मीन बाय करंट अफेयर? करंट अफेयर मीन्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, what is going on in the current scenario. Suppose what is the social condition of India or entire world, what is the political scenario, what is the economical scenario. Recently we have been covered with the COVID-19 pandemic. Suppose after that we are facing a kind of economical distress again, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, मणिपुर इज अनस्टेबल, रिसेंटली कर्नाटक विधानसभा के इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ी सी अनबनी, इंडिया और चाइना दोनों वॉर करने के मूड में। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ अराउंड यू, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जनरली। नेक्स्ट थिंग ये आएंगे कि सर अभी प्रीलियम में, यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती है, प्रीलियम, मेंस एंड इंटरव्यू। तो मुझे एग्जैक्टली किस स्टेज के लिए करंट अफेयर का प्रिपरेशन करना चाहिए, फॉर विच स्टेज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर of UPSC, whether I prepare for prelim, mains or interview. So remember one thing, current affair is for all the stages of UPSC examination. All stages. In prelim, out of 100 question, almost all 10 to 15 question will be dedicated to the current affair. After that, lots of subjects question like geography, some question, environment, some question, politics, some question will be again means based on the current affair approach, suppose. Remember, so in prelim you have to study current affair for prelim point of view, for from mains point of view again you need to prepare for current affair. That is again very much important, as there is no such separate section of current affair in UPSC mains. It's in prelim, they have given separate topic current affairs in prelim, but in mains there is no such topic, but they have given that every question will be asked in the context of current affair almost all. जियोग्राफी आप पढ़ेंगे, जियोग्राफी के 40-50% क्वेश्चंस इन द मेंस विल बी बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को हिमालयन इको सिस्टम के बारे में पूछ लिया, दैट हिमालयन इको सिस्टम इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्रैगाइल, सपोज ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटी, द ongoing landslide in the Himalayan region, suppose again जोशीमठ इज इन द न्यूज। साइक्लोन के बारे में पूछा जा सकता है, एज इंडिया इज अगेन हिट बाय द मोका साइक्लोन, ये जो अभी इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बाहर, दैट इज बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक एक्टिविटी। सोशोलॉजी में आप लोगों को करंट अफेयर पूछा जाएगा, आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी, सपोज सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, इन सभी इसमें आपको करंट अफेयर पूछा जाता है। और दूसरी बात ये है कि करंट अफेयर नहीं भी पूछा गया है तो सर आप लोगों को यू हैव टू डिलीवर योर आंसर इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर। क्वेश्चन का टोन कोई भी रहे, आप लोगों को प्रेजेंट सिनेरियो भी पुट करना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ विद द स्पेसिफिक टॉपिक, सपोज। और रही इंटरव्यू की बात, तो इंटरव्यू में भी आप लोगों को डायरेक्टली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन वी यूज टू कंडक्ट मॉक इंटरव्यू फॉर एमपीएससी, यूपीएससी एंड फॉर
different exams. Suppose even we used to, our maximum question in interview are based on current affair, or a separate dedicated means interviewer will be there who will ask you the question on current affair. तो तीनों स्टेजेस में आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ये आप लोग कृपया करके ध्यान में रखिए. मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सपोज अभी दूसरी बात ये है कि सर करंट अफेयर तो मुझे समझ में आएगा क्या है, मुझे ये भी पता चल गया कि ये कौन सी स्टेजेस में पूछा जाता है, बट दूसरी बात ये है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी करंट अफेयर. जैसे मैंने कहा करंट अफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द प्रिपरेशन ऑफ IAS exam. To become a IAS officer, you have a good hold over the current scenario, that what is going on right now, suppose. And lots of students even face a problem while preparing for the current affair because there is no specific formula or there is no specific syllabus of current affair. Current affair have its expansion very vast. It is almost all related with every subject. Historical current affair भी होते हैं, geographical, political, social, economical. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज ऑल रिलेटेड टू करंट अफेयर. और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखिए कि वेन एवर यू विल स्टडी करंट अफेयर, यूपीएससी आप लोगों को व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछने वाली है नहीं. कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन किया, क्यों किया, दिस विल बी नॉट द पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन. रिमेंबर, यूपीएससी विल ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज योर थिंकिंग एबिलिटी और दे विल ऑलवेज ट्राई टू चेक योर एनालिटिकल प्रोसेस. एक IAS ऑफिसर बनने के बाद आपका काम बहुत जनरलिस्ट रहने वाला है. योर वर्क इज नॉट गोइंग टू बी अ स्पेशलिस्ट. लाइक आपको मैं कोई ब्रिज बनाने को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जाओ IAS ऑफिसर ये एयरपोर्ट बनाओ आप. इसमें टेक्निकलिटीज लगती. आपका काम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होंगी मासेस के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ यू. You have your another important task is to provide maximum opportunities to the masses. Your another task after becoming IAS officer will be the decision making, and for all those kind of tasks you should be the aware of all the scenario what is going on around you. You have a proper information about the subject, you have a proper knowledge about the thing, so you can get a proper decision. Suppose this is the thing why UPSC is checking your current affair. ये आप लोग ध्यान में रखिए. काफ़ी नॉर्मल चीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. क्यूरियस होना चाहिए एक IAS ऑफिसर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करें, नॉलेज एब्जॉर्ब करें, एंड यू विल यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर द वेल बीइंग ऑफ मासेस. ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी. अभी नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस. सपोज आई होप यू पीपल आर गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन. सपोज कि अभी सपोज ठीक है मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, बट सर व्हाट आर द टिप्स टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर. अभी सपोज अभी न्यूज़पेपर तो है नहीं हमारे पास, बट आप कभी न्यूज़पेपर अगर सपोज पढ़ते हो तो कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एनालिसिस. दैट डे वी हैड taken the lecture on how to read newspaper within 90 minutes. In that section we discussed that you are almost all 80% newspaper constitute the 6th and 7th number page editorial. Those are the two pages from where you can get the maximum information, maximum analytical point, and even question will be more from those pages, which are known as editorial pages. Suppose तो आप लोग एडिटोरियल पेजेस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये आप लोगों को एक एनालिटिकल एबिलिटी भी डेवलप करेगा. सपोज और यूपीएससी के मेंस में आंसर लिखने के लिए आप लोगों के आंसर जो होते हैं जनरली एनालिटिकल बेस्ड एबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड होगी. दैट मीन्स दोस क्वेश्चन विल ट्राई टू चेक योर एनालिटिकल एबिलिटी, वेदर यू आर मीन्स able to analyze this topic properly or not. They are not going to check your any memorizing skill. आपने कितना इसमें ध्यान में रखा है. आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, यू हैव टू एनालाइज द इंटायर इन्फॉर्मेशन एंड साइमल्टेनियसली यू हैव द एबिलिटी टू लुक बिहाइंड द स्क्रीन्स. कि ये तो सपोज मुझे दिखाया जा रहा है बट इसके पीछे क्या है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए.
इसे आप लोग एक प्रकार की एनालिटिकल एबिलिटी डेफिनेटली कह सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रिपरेशन करते समय क्या करना चाहिए, तो मोस्ट क्यों निकल के जा रहा बार बार, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक। इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक हम लोग कल वापस सिलेबस डिस्कस करेंगे। उस सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि हाउ एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड विथ ईच अदर, इट इज इंटरलिंक्ड विथ each and every subject. Like history is related with or interlinked with geography, even political science is related with history, even history is related with economy। सपोज पेपर वन जो आप लोगों को दिया है यूपीएससी की, इसमें पेपर वन में आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर, ऑल दिस फोर टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड। फॉर इंस्टेंस आप लोगों को मैंने पूछा है कि व्हाट इज आर्यभट्टा। सो आर्यभट्टा वाज द मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। He has wrote the one book, or he is the astronomer of ancient India. But simultaneously, you must have to know Aryabhatta is the name of satellite also, which is in current affair right now। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्यभट्टा जो हम लोग अभी जो सबसे फर्स्ट सैटेलाइट था इंडिया का, दैट वाज आर्यभट्टा। सपोज सिल्क रूट एक आप लोग पढ़ते हुए एंशियंट हिस्ट्री में, सिल्क रूट इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द चाइना, एंड राइट नाउ दैट सेम सिल्क रूट इज इन न्यूज because China is constructing or China is focusing on the one road, one belt initiative। Everything is connected. History is directly connected with geography. How your history is like this because our geography is like this। Generally, geography decides the course of history। ये आप लोग ध्यान में रखिए। इंटरलिंकिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी, मैं तो वही कहूंगा। यूपीएससी को कैसा है ना कि आप लोगों को टॉपिक दिए और यूपीएससी का ये कहना है कि इन टॉपिक्स को ऐसे इंटरलिंक कर दो और मुझे बता कि हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। टॉपिक्स को हम लोग सेपरेटली भी पढ़ेंगे, बट आप आंसर लिखते टाइम उसे सबको एक बताइए। जैसे मैंने कहा, आंसर लिखते टाइम सोशल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिकल एंगल, जोग्राफिकल एंगल, हिस्टोरिकल एंगल, दैट मीन्स यू आर पुटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज सब्जेक्ट्स। इंटरलिंकिंग का भी होना जरूरी। मैंने करंट में इंडियन, मुझे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम। हमने अभी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पूछा कि डिस्कस द करंट challenges। करंट में क्वेश्चन है, बट वी विल स्टार्ट अवर आंसर फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द हिस्टोरिकल सीनेरियो ऑफ द सेम टॉपिक। ये आप लोग समझ लीजिए, यानी एकदम सिंपल बात है। पढ़ते समय थोड़ा सा आगे पीछे का पता होना चाहिए। इसे 360 डिग्री का प्रिपरेशन करते कि एक ही टॉपिक के बारे में मुझे हिस्ट्री भी पता है, ज्योग्राफी भी पता है, पॉलिटी भी पता है उसकी, और सोशियो इकोनॉमिक एंगल भी पता है। यानी मैं तो वही कहूँगा, एक टॉपिक पढ़ते हो उसके तीन चार एंगल पढ़िए सिर्फ, दूसरा आपको कुछ भी पढ़ाई करना नहीं इंडिया में, यानी यूपीएससी में, सॉरी। आपको वुमन इंपावरमेंट पूछा गया, वुमन इंपावरमेंट के बारे में सोशल एंगल बताइए, पॉलिटिकल एंगल बताइए, इकोनॉमिकल एंगल बताइए, कल्चरल एंगल बताइए, रिलीजियस, चार पांच एंगल बता दीजिए, हो गया आप लोगों का आंसर। मल्टीपल वेज से आप लोगों ने आंसर लिखना, और इसके लिए आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के साथ साथ उसका करंट अफेयर। एंड वंस यू गेट टू नो द बोथ द थिंग्स, यू जस्ट कैपेबल टू मेक अ इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग होना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए। वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक पॉलिटी का, इसलिए मैं उसे पॉलिटी के एंगल से लिखूंगा ये जरूरी नहीं है। वो पूछा पॉलिटी में गया है, बट आप लोगों को मैंने कहा है कि एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, और सभी उसके पर्सपेक्टिव आप लोगों को पता होने चाहिए, वो लिखनी चाहिए आप लोगों ने। ये इंडिकेट करता है। ध्यान में रखिए, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी थर्ड थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर इज इट रियली नेसेसरी टू ड्रॉ द नोट्स। कि जैसे मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या मैं अभी मैगजीन पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इसमें कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लग रही है, तो शुड आई ड्रॉ द नोट्स ऑफ इट। तो देखिए, जैसे कि ऑल ऑफ यू पीपल आर नाउ अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट भी नहीं आप लोग, यू हैव जस्ट क्रैक योर 10th एंड 12th। तो आप लोगों को नोट्स मेकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम वगैरह रहेंगे, तो इन दैट केस वी जनरली यूज टू सजेस्ट कि आप जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स ड्रॉ करते हो, वैसे करंट के भी नोट्स ड्रॉ कर लिया कीजिए। बट जैसे कि आप लोगों को एग्जाम देने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 4 to 5 years। तो इन माई ओपिनियन यू जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस प्लीज़। न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी हैबिट है, इट्स अ गुड हैबिट। न्यूज़पेपर पढ़ने वाली इंसान को जेंटलमैन, वुमेन को जेंटल वुमेन कहा जाता है, कि दे आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम।
अंधभक्त के जैसे नहीं रहते हो कि क्या चल रहा मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ हनुमान जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, हनुमान जी तो है ही है, बाकी लोग भी है, वो भी दिखने चाहिए हम लोगों को, और इसके लिए फिर करंट अफेयर पता होना चाहिए। तो नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत आप लोगों को फिलहाल नहीं है, बट फिर भी आप कहेंगे कि सर आज नहीं तो कल ज़रूरत है क्या, तो जब भी एग्ज़ाम आप लोग देंगे कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उस समय हम लोग नोट्स बनवा ही लेंगे। बहुत लोगों को न्यूज़पेपर को ऐसे कट करने का आदत रहता है, आर्टिकल्स को दे यूज टू स्टिक इट इन देयर बुक सपोज, तो वो कटिंग एंड पेस्टिंग वाला काम हम लोगों को नहीं चाहिए, कट पेस्ट वाला। हम लोग लिख के ही लेंगे सब चीज़ें प्रॉपरली, सपोज लिखने के ऊपर ही हम लोग जनरली फोकस करेंगे। जहाँ तक मुझे ठीक लगता है लिखना ही अच्छी चीज़ रहेंगी, बट बाद में लिखेंगे हम लोग, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग कि सर मैंने अभी सोर्सेस क्या यूज़ करने चाहिए, कि सर मुझे कृपया ये बताइए कि व्हाट शुड बी द सोर्सेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर। तो देखिए, आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था, आप लोग न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। न्यूज़पेपर रीड करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से है, आपका अंग्रेजी अगर बहुत अच्छा है, सो यू कैन गो थ्रू द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू अभी मैंने रख दिया उधर, या होगा यहाँ पे बट नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखाता था, मैंने दिखा भी दिया था उस दिन, उन्होंने लेक्चर भी लिया है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए। अगर आप लोगों का इंग्लिश ठीक ठाक है कि सर मैं ज़्यादा, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, आई बिलोंग टू सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश, सो यू कैन गो थ्रू इंडियन एक्सप्रेस। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है उसकी, इजी लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू द हिंदू। द हिंदू का वोकेबलरी थोड़ा सा मॉडरेट के ऊपर कैटेगरी में जाता है, नॉट अ टफ बट इन बिटवीन मॉडरेट एंड टफ सपोज। बट इंडियन एक्सप्रेस का वोकेबलरी, उनका वर्डिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन टू द हिंदी मीडियम, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी है, तो हिंदी मीडियम में आप लोग दैनिक जागरण एक पढ़ सकते हो, या जनसत्ता करके आता है, जनसत्ता अगेन बिलोंग टू एक्सप्रेस ग्रुप, तो आप लोग हिंदी में उसे पढ़ सकते हो। और बाकी कुछ लोग एज दे आर प्रिपेयरिंग इन मराठी मीडियम, सो फॉर मराठी यू कैन गो फॉर लोकसत्ता। जनसत्ता, लोकसत्ता बोथ बिलोंग टू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। इट्स वेरी, इट्स रियली नाइस न्यूज़पेपर, इवन आई यूज टू रीड लोकसत्ता इन मराठी, बहुत अच्छा दिया रहता है। द हिंदू भी पढ़ा कीजिए, तो ये आप लोगों के सोर्सेस रहेंगे ऑन डेली बेसिस। बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर अभी डेली तो मुझसे पॉसिबल होगा नहीं, तो क्या मैं डेली बेसिस के ऊपर स्किप करके मैं मंथली बेसिस के ऊपर पढ़ सकता हूँ। तो देखिए, आप अगर डेली बेसिस के ऊपर लगता है कि सर मुझे बोर होता है, या मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है, या इतना समय नहीं है, तो यू कैन गो फॉर मंथली एडिशन ऑल्सो, क्योंकि मंथली मैगजीन्स भी आती है। फिर मार्केट में सैकड़ों मैगजीन्स अवेलेबल है डेडिकेटेड टू करंट अफेयर प्रिपरेशन। यू कैन सब्सक्राइब एनी मैगजीन। उस दिन हमने बात की थी योजना मैगजीन की, और एक मैगजीन है बट वो भी लेके गए शायद बच्चे, सब लेके जाते हैं। मैगजीन से एक आप लोग पढ़ सकते हो, सपोज योजना है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र की तो कुछ ज़रूरत नहीं है एज इट इज़ डेडिकेटेड टू द करंट, सॉरी रूरल डेवलपमेंट सपोज। बट आप लोग योजना मैगजीन ज़रूर पढ़िए, मैंने उस दिन आप लोगों को योजना पढ़ा बताई भी थी, हाउ टू रीड योजना मैगजीन। और दूसरी कोई क्रॉनिकल हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, सिविल सर्विसेज टाइम से, CSR है, कम्पिटेटिव सक्सेस रिव्यू, तो ये मैगजीन आप लोग मंथली बेसिस के ऊपर पढ़ सकते हो। अभी आपने कहा कि सर ठीक है, मंथली मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, 300 न्यूज़पेपर हो जाएंगे, मैं मंथली मैगजीन पढ़ूंगा, 12 मैगजीन्स हो जाएंगी, तो सर इनको रिवाइज करने के लिए बड़ा दिक्कत आएगा, फिर तो हम लोग क्या कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आप लोग एक ईयरली एडिशन भी ले सकते हो, कि जैसे आपने डेली भी नहीं किया और आपने मंथली भी नहीं किया, तो ईयरली भी एडिशंस आते हैं, तो ईयरली एडिशन भी आप लोग ले सकते हो। खुद गवर्नमेंट का ही रहता है, इंडिया ईयर बुक, अदरवाइज मनोरमा हो गया, ढेर सारी मैगजीन्स के ही खुद ईयरली कंपाइलेशंस आते हैं। तो आप लोग ईयरली बेसिस के ऊपर भी जा सकते हो, यू कैन गो ऑन डेली बेसिस, यू कैन गो ऑन मंथली बेसिस, और इधर यू कैन गो फॉर ईयरली बेसिस ऑल्सो। इससे ज़्यादा कोई वैरायटी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग तीनों में से एक चूज़ कीजिए, बट इन माय कंसेप्ट इट्स बेटर टू गो ऑन डेली बेसिस। न्यूज़पेपर मैंने बता ही दिया है कैसे पढ़ना है, एज इट्स अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर प्रिपरेशन, सो रीड इट रेगुलरली। मंथली और ईयरली की आप लोगों को नोट्स वगैरह तो कोचिंग से मिल ही जाएंगी, फिर उसका तो आप टेंशन ही मत लीजिए, आपके कोचिंग में करंट के रेगुलर लेक्चर्स भी होते हैं, एंड साइमल्टेनियसली आप लोगों को नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करके दिया जाता है।
होता क्या है ना, आप लोग न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर जो डिज़ाइन किया हुआ रहता है ना, वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से, दैट द हिंदू न्यूज़पेपर इज नॉट डिजाइन फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें आप लोगों को चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी कि व्हाट इज रिगार्डिंग माय सिलेबस, मुझे यूपीएससी में क्या आ सकता है। तो तकरीबन 300-400 न्यूज़ है, उसमें से 10-15 आपको निकालनी पड़ेंगी, इसमें समय जाएगा। जो मंथली कंपाइलेशन होता है मैगजीन का, वो डायरेक्टली सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया रहता है कि उसका एक एक पेज, एक एक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं इतनी। और दूसरी चीज़ क्या है ना, ढूंढने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को सब वहाँ पे दिया ही है। और दूसरा बेनिफिट होता यह है कि जो मैगजीन होती है ना, मैगजीन की अपनी लिमिट होती है। कोई भी सिविल सर्विसेज की मैगजीन 80 या 90 पेजेस के ऊपर नहीं होती है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। एवरी मैगजीन फिनिशेज विद इन 100 पेजेस। तो 100 पेजेस का मैगजीन आप लोग 4-5 दिन में बड़े आराम से पढ़ सकते हो, जो मंथली बेसिस के ऊपर। और ऑलरेडी आप लोगों को सब सॉर्ट आउट करके दिया रहता है वहाँ पे। ये एक आप लोग ध्यान में रखिए। और लास्ट की चीज़ आएंगे, जैसे कि फर्स्ट हमने देखा कि यूपीएससी फोकसेस कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एनालिसिस, तो आप लोगों का डेटा एनालिटिकल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट। इंस्टेड ऑफ दैट, सेकंड थिंग वी डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक। you have to be able to connect all the topics, history with geography, polity with component, this with that with this, इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट भी डिस्कस दैट नोट्स मेकिंग, सर इज इट रियली नेसेसरी टू मेक अ नोट्स, सो दैट ऑल्सो भी डिस्कस। इन योर केस इट्स नॉट नेसेसरी। फोर्थ थिंग भी डिस्कस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अ करंट अफेयर। सो करंट अफेयर का मैंने डेली सोर्स बताया, मंथली सोर्स भी बताया और ईयरली सोर्स भी बताया। और लास्ट हम लोग देखेंगे, सर इज इट नेसेसरी टू रिवाइज करंट अफेयर। सो यस, रिवीजन करंट अफेयर की होनी ही चाहिए, बिकॉज स्टडी विदाउट रिवीजन इज नो स्टडी एट ऑल। पढ़ाई हर कोई बच्चा करता है, बट एवरी वन कुड नॉट गेट सक्सीडेड, दैट इज ओनली बिकॉज यू डिड नॉट रिवाइज द थिंग्स विच यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। वो किसी के ध्यान में नहीं रहता है, किसी के भी नहीं कि एक साल पहले मैंने क्या पढ़ा था। सर हम लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, हम लोगों को करना ही पड़ता है, बिकॉज वी आर नॉट अ सुपर ह्यूमंस। आम इंसान है हम लोग, मैंगो पीपल। तो मैंगो पीपल को हमेशा अपने आप को चेक करना पड़ता है, तो आप लोगों को रिवीजन करनी पड़ेगी। रिवीजन जैसे मैंने कहा, मैगजीन होती है, मैगजीन के जस्ट पेजेस हम लोग पलटते जाएंगे वापस। दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर। सपोज आई होप यू पीपल आर गॉट एवरीथिंग।